The other very important issue is, in this country, the other tragedy of this matter is the abuse of the free flow of our so-called foreign exchange system. We have a parallel foreign exchange system which provides mechanism through which the payments can be made in US dollar to the importer through which the underutilized products have been imported. हम लोग, हमारा मुल्क वो वाहिद मुल्क है जिसमें underutilized product को आप ऑप्शनली पे कर सकते हैं. We have F25, which is a foreign exchange circular, and 111(4) exemption income tax pay, through which you are very clean, legally do all these things. We have got two provisions, F25, which is a foreign exchange circular, and 111(4) is income tax exemption. आप underutilized product करें, पैसे बाहर भिजवाएं, उससे income आए, उसको 12 साल में रिटर्न फाइल करें, उसमें लिखें कि ये 111(4) में exempt है. खत्म हो गया. मतलब पागल ही है जो टैक्स देगा. मतलब वो क्यों देगा, वो क्यों का, वो किसी बंदे को किस पागल कुत्ते ने काटा है वो साइड लगाने में सीधे लगाएगा जब इतना आसान कारोबार मिल रहा है और सब कुछ लीगल है. चलिए जी, बात इलीगल हो ना, मैं कोई चोरी कर रहा हूँ, मैं किसी कानून की खिलाफवर्जी कर रहा हूँ, मैं मारा जाऊंगा ना. मैं तो एफिडेविट जो है पैसे लेकर आता हूँ और 111 में से क्लेम करता हूँ इनकम को. व्हाट इज द प्रॉब्लम? व्हाट इज द प्रॉब्लम? देयर इज नो प्रॉब्लम. We would have to seriously examine foreign exchange system that tilts towards, nevertheless, the merits of the free trade. हमें ये मानना पड़ेगा कि notwithstanding the merits of free trade, this population of 180 million needs job. ये 180 million की population है. ये this need job, not support from Benazir income support program or food from Salani Filter Organization. These direct interventions are short-term solution, but not the end. This is equal to prescribing aspirin for a cancer patient. बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और सिलानी के बेचारे जो खाने खिलाते हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे कैंसर के पेशेंट को आप एस्पिरिन दे रहे हैं. This country needs a major surgery on the economic grounds. Smuggling. In our society, availability of smuggled goods have been accepted as a norm. पहले जमाने में लोग स्मगल बाजार में छुप रहा करते कि सामान स्मगलिंग का बाजार है, वो कोने में गली में होगा तो ये इस बाजार स्मगलिंग प्रोडक्ट बेचता है और लोग वहां जाते हुए शरीफ आदमी जाता हुआ घबराता. There is continuous flow of smuggled goods across the border. Containers from Karachi port as well as from Sus border in the northern area. Reduction in duty rate is given as a solution. I totally disagree with all the solution. There is a need for a national anti-smuggling drive. Not by custom officers, with political consensus for people to discourage and disassociate for purchase, sale and trade of smuggled goods. हमें एक कौमी सोच बनानी पड़ेगी कि हम स्मगल्ड गुड्स नहीं इस्तेमाल करेंगे. कस्टम ऑफिसर नहीं जाकर पकड़ेगा, वो पकड़ेगा तो कैसे पकड़ लेगा? You know, please, we are trying the wrong measures. We are the national drive with smuggled goods इस मुल्क में पब्लिक एरिया में स्मगल्ड गुड्स नहीं कहती है. ये स्मगल्ड गुड्स को हम डील नहीं करेंगे, हम दुकान किराए पे नहीं देंगे स्मगल्ड गुड्स. अदरवाइज आप कोई रिजल्ट कानून में एक 25 की पावर देके 2 पावर देके आप ये मसला हल नहीं कर सकते. Custom administration, I will still is not very important. But in the custom administration, what I am trying to say, and I am saying it very openly, मेरे हिसाब से पर्सनल हिसाब से, ज़ाती हिसाब से, the one of the reform which has not been taken is that inland revenue आपने मर्ज कर दिया. Inland revenue means आप स्टेट टैक्स और इनकम टैक्स एक हो गया, वो रेवेन्यू है, वो एक डिपार्टमेंट है, आपने ये कर दिया, वो सही है, वो inland revenue. मेरे हिसाब से कस्टम का कल्चर inland revenue से नहीं मिलता. तो हमारा बैठे हैं वो मेरे जानते हैं, कस्टम का कल्चर एक और कल्चर है और इनलैंड रेवेन्यू और सेंट्रल का कल्चर एक और है. मेरा जाती व्यू ये है, अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो कस्टम को सीबीआर से अलग कर दें. कस्टम इज नॉट अ रेवेन्यू कलेक्शन डिपार्टमेंट. कस्टम इज नॉट अ रेवेन्यू कलेक्शन डिपार्टमेंट. If you really want to make proper industrialized policy for duty, take the custom out from CBR. It is not a revenue collection, it is a management of the trade, facilitation of trade. एंड क्योंकि इसका एक नया बोर्ड बना दिया इंडिया में 2 बोर्ड है, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन है, डायरेक्ट टैक्सेशन, एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन, 2 अलग अलग है. और दूसरी बात है कि कस्टम के अंदर सारी ट्रेड जो कराची से हो रही है उसका हेडक्वार्टर इस्लामाबाद से कराची गया. कस्टम का हेडक्वार्टर इस्लामाबाद होने का कोई लॉजिक ही नहीं. The custom should be decentralized from CBR, and since the bulk of trade is coming from Karachi, so custom should be headquartered in Karachi, not Islamabad.
This is the solution for the customer. The problem, the third, now I will go to the another indirect taxes is federal excise duty. Federal excise duty में एक सीरियस इशू है जो आप रियलाइज, इस पे कोई मेजर इम्प्लीमेंट नहीं, मतलब मैं सीरियस इशू लेकर जाता हूँ। जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, इसमें फेडरल गवर्नमेंट ने प्रोविंशियल गवर्नमेंट के राइट को इंक्लूड किया हुआ है। फेडरल एक्साइज ड्यूटी ऑन सर्विसेज एक बेसिकली गलत चीज है जो गलत हो रही है। और आज जो आप देखते हैं, मैं डिस्कस करूंगा थोड़ा सा, वेट का झगड़ा जो पड़ा हुआ है फेडरल एक्साइज ड्यूटी का झगड़ा है, क्योंकि फेडरल एक्साइज ड्यूटी ऑन टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रैवल, ये सर्विसेज का टैक्स है जो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन सूबों का हिस्सा है। तो फेडरल एक्साइज ड्यूटी फेडरल गवर्नमेंट के हाथ में वो तलवार है, इसको जब चाहे सूबों में आपके लिए इस्तेमाल करें। तो अगर आप फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मैकेनिज्म को सही करना चाहते हैं, तो पहली बात तो फेडरल एक्साइज ड्यूटी और सर्विस को खत्म करें। There should not be any federal excise duty on services, which is going to be happen in the VAT. Secondly, federal excise duty जो है, ये होती है दुनिया में, जहाँ भी federal excise duty होती है, ये दुनिया में होती है उन चीजों को कंज्यूम करने के लिए जो या तो ऐशी की होती है या जरूरत की जरूरत नहीं होती, लाइक गैम्बलिंग, लाइक शराब। एक्साइज ड्यूटी का मकसद एक्स्ट्रा टैक्स करना नहीं है। तो we should either do away with excise duty or restrict it to the people which are not there. Now coming to the very important subject, which I will just skip through very quickly. मैं आपकी presentation जो है दे दूँगा, मैं पूरी नहीं पढ़ रहा हूँ और ये आप देख लीजिएगा। इसकी presentation की मैं आपको देगी। दूसरा जो इशू है जो आज हमारे इसको कहते हैं ना कि इस बजट में एक तो फसाना ओपन है, एक फसाना दबा हुआ है वेट का। एक तो फसाना ओपन है जो आ गया, एक वो है जो अक्टूबर में वेट की शक्ल में आने की उम्मीद है। तो जो आज हमें जरूरत है कि हम आज उस वेट वाले मसले को भी थोड़ा सा हल कर लें कि वेट का मसला हमारे हिसाब से क्या है। मैं बड़ा ब्रीफली इस पे मैंने ये सवाल इसको वेट वाले मसले को 5 सवालों में याद कर दिया। अगर 5 सवाल आप समझ जाएंगे तो फिर आपको वेट की मैकेनिज्म को थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी। पहली बात ये कि क्या वेट नया टैक्स है। दूसरा सवाल है कि फेडरेशन और सूबों का झगड़ा क्या है। तीसरा सवाल है कि क्या इससे महंगाई बढ़ेगी। चौथा सवाल है कि क्या हमारी ट्रेड के लिए तैयार है। और 5वां सवाल है कि एक्सपोर्ट का क्या गर्म पास में पाला हुआ है। ये 5 सवाल हैं कि वेट के बारे में 5 सवाल है। इन 5 सवालों को हमने जी भरे कंफ्यूज किया हुआ है। मतलब हर बंदा इसको कंफ्यूज कर रहा है विदाउट आइडेंटिफाइंग द इश्यूज। देयर आर 5 इश्यूज। इज इट अ न्यू टैक्स? What is the dispute between federation and province? Is it inflationary? What is the status of wholesale retail trade? And what has to be done for export oriented sector? ये 5 सवाल है। इन 5 सवालों का आंसर मैंने इसके अंदर दिया हुआ है। मगर इससे पहले पर्सनली मेरा व्यू है कि वेट लगाने का मकसद किसी हाल में भी एज ए स्टूडेंट ऑफ टैक्सेशन पॉलिसी किसी हाल में भी कंजम्पशन टैक्स को बढ़ाना नहीं है। और वेट लगाने का मकसद, गवर्नमेंट का वेट लगाने का मकसद वो नहीं है जो समझा जा रहा है। वेट लगाने का मकसद, मैंने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। वेट लगाने का मकसद ये है, वो उसने इसको 3 पॉइंट डिवाइड किया है कि पहला मकसद है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विसेज सेक्टर एंड ओवरऑल टैक्स बेस इज टू बी इम्प्रूव्ड। एट प्रेजेंट कंजम्पशन टैक्स इज इफेक्टिवली डिस्ट्रीब्यूटेड टू गुड्स। सर्विसेज जो है पाकिस्तान में वो कंजम्पशन टैक्स में नहीं आती है, तो उसकी वजह से सर्विसेज कंट्रीब्यूशन जो है जीडीपी में बहुत कम है। इसका मकसद, पहला मकसद ये है। दूसरा मकसद ये कि हमने एक्सपोर्ट सेक्टर को एग्जाम कर दिया है एक्सपोर्ट के जगह पर, तो एक्सपोर्ट का पूरा लोकल कंजम्पशन भी एग्जैक्ट हो गया है। दूसरा मकसद वेट लगाने का ये है। तीसरा मकसद वेट लगाने का ये है कि जो ट्रेड के सेक्टर्स हैं लाइक होलसेल रिटेल ट्रेड, वो वेट में आए, उनसे वेट नहीं लेना है। वेट तो ऑलरेडी दे रहे हैं, उनको डॉक्यूमेंटेशन में लाके उनसे इनकम टैक्स लेना है। Let us be clear on this thing. Let us not be confused and let the businessman know कि वो इसको मैं जाल नहीं बोलता कि जब इस सिस्टम में आएगा तो उसका इफेक्ट क्या होगा, वो भी बेवकूफी से मुझे पता है। तो let us be clear कि वेट का मकसद किसी हाल में भी वेट की कलेक्शन को इम्प्रूव करना नहीं है। वेट लगाने का मकसद डॉक्यूमेंटेशन लेवल ऑफ द ट्रेड को इम्प्रूव करना है। सो वो डॉक्यूमेंटेशन लेवल जब बढ़ेगी तो सारे टैक्सेस का लेवल बढ़ेगा। So these are